Hi Pratyush. First of all, congratulations for securing and cracking one of the most toughest exams of India, that is SEBI Legal Officer, Pratyush. So let Thank you. me introduce yourself. Pratyush has been a hardworking student, has been associated with LEAC also, and recently he has cracked SEBI Legal Officer. So Pratyush, first please introduce yourself for all the students of LEAC. Sure, ma'am. Firstly, thank you so much for that introduction. And my name is Pratyush Vishwanath. I'm originally from Lucknow, where I did my schooling. And thereafter, I moved to Delhi University, from where I did my law. And then I graduated in 2020. And then in 21, I got registered as an advocate. And since then, I have done multiple stints. I've worked at the Supreme Court as a law clerk. Then I've also litigated and also worked with and been associated with a lot of other institutes. And I was also simultaneously preparing for the judicial exams initially, and then I moved to this. And luckily, this was my first and probably the last attempt, and I cleared it. ग्रेट सो प्रत्युष हमेशा जब हम इतनी लंबी जर्नी तय करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमने बहुत सारे आपने बहुत सारे फील्ड्स को चूज़ किया मतलब उसमें काम किया आपका एक्सपीरियंस हुआ तो अब ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप कौन किस किस को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो फॉर योर जर्नी आई गेस मैं मतलब जैसा आपने कहा कि एक इंडिविजुअल के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, वैसा ही मेरे साथ भी था। एंड आई गेस my pillar of strengths were firstly my family, my parents, who were always very supportive of whatever I did. They never expected any results. They were like that you be invested in the process and just do what you like, and the results will come after that. And although it did take a very long time, but eventually it did come true. And I would also like to take this opportunity to thank my sister Nitika, with whom I was putting up in Delhi, and she was the backbone, along with my brother-in-law Arnab, who was also very supportive, and my brother Nitish. He is based in Bangalore, but he was always available. Although physically we were apart, but we were always connected. And most importantly, I would like to thank my partner Prerna, who has been a pillar of strength, and she has been through this thick and thin times with me for the past almost 8 years now. Yeah. ग्रेट सो प्रत्युष लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपके दिमाग में सबसे पहले इस ऑप्शन को चूज करने के थॉट कहाँ से आया कहाँ से यू डिसाइडेड कि नहीं क्योंकि आपका बहुत डाइवर्स करियर रहा है सिंस तो आपने जी। कैसे सोचा कि आपको सेबी लीगल ऑफिसर के लिए अपियर करना चाहिए इनिशियली मतलब मुझे पता तो इसके बारे में शायद लॉ स्कूल के बाद पता चला इन द ईयर 2021 सम पीपल हैड अपीयर्ड, बट तब मेरी थोड़ी जो तैयारी थी वो मोस्टली जुडिशरी की तरफ ज़्यादा थी उस समय हम्म ग्रेजुएशन के बाद। और अलोंग विद दैट तो मैंने इसको इसलिए भी शायद उस समय नहीं कंसिडर किया क्योंकि मुझे पहले तो इतना ज़्यादा इसके डिटेल में मालूम नहीं था, एंड ऑल्सो दैट आई ऑलवेज फेल्ट दैट रीडिंग द सिक्योरिटीज लॉ एंड द कंपनीज एक्ट एंड ऑल दीज एक्ट्स is a task in itself, and it is something which is very difficult to manage along with the judicial preparations. Since I had given a lot of mains examination, I had almost given every mains examination of the North Indian states. हम्म So I was always occupied with some mains, one after the other, and then I had cleared the Supreme Court clerkship, so I was busy there. So 2023 tak to it did not even, like, I did not even consider it. Then in 24, when the notification had come, one of my friend who had cracked it in 2023, I would also like to thank him, Avichal, and another friend of mine who was also my roommate in Delhi University, Nikhil Agarwal. He's a judge in Gujarat. So they were also very supportive, and they were like that you should at least give it a try. But back then I was so occupied, and there were only, I guess, last time there were around 5 vacancies. हम्म So I felt that it is not something for which I can leave my job or prepare, and this is not something which might be very fruitful considering that there were such limited vacancies. But this time around I felt, and the exam was, it came at a time where I was also looking for a transition in my phase. So luckily that opportunity came by, and I felt that it is a very good chance. And the best part was that when I was writing all the three stages or I was appearing, I was never expecting anything out of it. हम्म I was very detached from the process because I had failed so many times that it felt like that it might be just another failure. So I was very much prepared for it. Although everyone has certain attachments to, if you have given 6 odd months rigorously for something, along with the emotional turbulent mind that you have when you're preparing for such exams. So the only advice I have for the people who are willing to prepare for any other exam or this exam is that firstly take care of your mental health. That is the
first and foremost thing that you should worry about. Apart from that, things do fall in place eventually, as it did in my case. So that is my kind of only advice. ठीक है। सो प्रत्युष, थोड़ा सा बच्चों को पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्या फेजेस ऑफ प्रेपरेशन थे और आपने जी, क्या क्या सोर्सेज पे रिलाई करा इन ईच फेज ऑफ योर प्रेपरेशन। sure. So guys, for SEBI legal officer we have three stages of matlab selection process: phase 1 exam, phase 2 exam, then the final stage of interview. So let's start with the phase 1 situation. प्रत्युष, आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर करा, क्या सोर्सेज रेफर करे, प्लीज लेट अस नो। मैम, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने फेज 1 के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा। टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, मैंने फेज 1 के लिए एकदम नहीं पढ़ा था, क्योंकि नेक्स्ट डे सीबीआई का एग्जाम था। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द लॉ पार्ट, बिकॉज मैं 4-5 साल से ये सारे एग्जाम्स दे रहा था और मैंने पास्ट ईयर्स देखे थे, तो मुझे पता था कि लॉ वुड नॉट बी अ हिंड्रेंस। मुझे बस इनिशियली मैंने सोचा था दिसंबर में कि आई विल प्रिपेयर फॉर द पेपर 1, बट व्हेन आई रेड, आई रियलाइज कि इसमें कोई कट ऑफ नहीं होती, अनलाइक जुडिशियरी एग्जाम। तो आपका कंपटीशन खुद से ही है। तो आई वाज वेरी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट। मुझे पता था कि मुझे 30 नंबर चाहिए बस पेपर 1 में, क्योंकि 50 द मतलब फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, वी हैव टू गेट अ टोटल ऑफ 80। इट कैन बी इधर 40-40 और 30-50। राइट। तो आई न्यू दैट टोटल 80 तो आ जाएंगे। वो अकेले बाय चांस मेरे लॉ में 82 थे फाइनली, तो वो तो ग्रेट। क्लियर वाज नॉट अ टास्क। बट द बिगेस्ट हर्डल जो सबका आता है, स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स, वो मैथ्स का डर है, और करेक्ट। वो मेरा बचपन से था। तो मैंने मैथ्स पे रिस्क ही नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो इतने साल से मैं नहीं कर पाया, शायद उसमें अब टाइम देना और अलोंग विथ वर्क एंड एवरीथिंग, इट वाज नॉट पॉसिबल। तो मैंने बहुत स्ट्रैटेजी किया। मैं, मुझे जितना याद है, मैंने शायद 20 में से 19 इंग्लिश के अटेम्प्ट किए थे, 19 के 19 सही। वेरी गुड। उसके बाद मैंने रियलाइज़ कर लिया कि इंग्लिश मेरा अब ऐसा हो गया, तो मुझे मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन और चाहिए। तो शायद मैंने 2 या 3 क्वेश्चन जीके के किए, और रीजनिंग के 5 से 6 जो नंबर सीरीज पैटर्न्स, और जो बहुत ही बेसिक होते हैं, जिसमें आप टाइम लेके कर सकते हो। और एक और चीज़ मुझे वहाँ रियलाइज़ हुई, जो हमें नहीं होती है, कि वहाँ पे टाइम इतना तेज़ चलता है कि आप कोशिश करते हो और आपको पता भी नहीं चलता टाइम कब खत्म हो गया। सो मेरा तो बस यही सजेशन है कि अगर मुझ जैसा बंदा, जो मतलब मैथ्स का एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया उसमें, जो कि सबसे बड़ा हिंड्रेंस होता है शायद। अब जब मेरा क्लियर हुआ, काफ़ी लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, थैंक कर रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि यार, ये फेज़ 1 की में मैथ्स तुमने कैसे की? मैंने कहा, मैंने की ही नहीं मैथ्स। एंड और एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्लोई की तरफ देखते ही नहीं है और इन मुझे एग्जाम्स को मैथ्स एम ही नहीं करते बिकॉज ऑफ मैथ्स। और मैं इसीलिए इस पे इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ, बिकॉज़ ये जिसको भी रीच आउट करे, आई वांट देम टू नो कि आपको स्ट्रैटेजिक, क्योंकि मैं अभी पहले नोटिफिकेशन इतना ध्यान से शायद नहीं पढ़ता था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी उसमें उस समय तक इतना डेवलप नहीं हुआ था। बिफोर, जब मैंने क्रिमिनल लॉ थोड़ा प्रैक्टिस किया, व्हाइट कॉलर क्राइम्स पढ़े, सिक्योरिटीज पढ़ा, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आता है आपको। तो मतलब मुझे तो ये लगा, चूंकि मेरा प्राइमरली इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉ में इतना ज्यादा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा, जैसे पीआईटी के रेगुलेशंस हैं और ये सब पढ़ा, जिसमें कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ से बहुत ओवरटोन्स हैं। तो वो पढ़ के आए, आई रियली फेल्ट दैट इट इज समथिंग, कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। और लकीली, क्योंकि मेरा दोस्त ऑलरेडी काम कर रहा था, तो उसका वर्क एक्सपीरियंस सुन के भी मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। तो मैं राइट। मैथ्स का तो ये कहूँगा कि अगर आप स्ट्रैटेजिक हो, तो आप बिना मैथ्स को अटेम्प्ट भी किए, ऑल्दो आई वुड नॉट से कि मत करो। मेरे केस में वो अलग था, बिकॉज़ आई हैड द सीबीआई एग्ज़ाम आल्सो, एंड आल्सो उस समय में बहुत ही, मतलब मेरा बहुत वो चल रहा था कि मैं स्विच भी करना चाह रहा था जॉब का भी, कुछ बहुत लिटिगेशन में ऑलरेडी स्ट्रगल चल रहा था। तो मतलब मैथ्स हिंड्रेंस नहीं बनेगा अगर आप स्ट्रैटेजी को बस। और अलग मतलब कोइंसिडेंटली, आई वुड आल्सो लाइक टू टेल कि इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन मेरे पास आया, बिकॉज़ कहीं न कहीं से तो कुछ मैथ्स की बात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा। तो आई वाज़ वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इट इज़ समथिंग दैट इज़ माय वीक पॉइंट। So the other member, I guess the external member, there are 4 members who are from SEBI, and then there is one external member. So उन्होंने पूछा था क्वेश्चन। तो चेयरपर्सन ने कहा, देन हाउ डिड यू मैनेज टू क्लियर फेज 1? So I told her कि I did not even attend one question from maths, because that was not my strong point, and I was very confident about the English part. And since the cutoff was kind of predetermined, I was fighting against myself. So she kind of smiled back at me, and so आई थिंक दैट मतलब गेव यू एन एज इन द इंटरव्यू ऑल्सो। आई maybe बिलीव it could सो। have, ग्रेट। yeah, ग्रेट। ठीक है, अब थोड़ा सा फेज 2 पे चलते हैं। ठीक है, जी। तो थोड़ा सा फेज 2 पे अपने इनसाइट्स दो कि उसको कैसे क्रैक किया, उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी। फेज 2 में एग्जैक्टली आई गेस हमारे पास अराउंड 40 डेज थे। तो जब मैं पेपर 1 दे के आया, उसके नेक्स्ट डे मेरा सीबीआई का एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं ये समझ गया था कि मेरा लॉ तो सही में क्लियर हो रहा है। बट मुझे ये था कि मैंने फेज़ 1 कैलकुलेट किए, मैंने अराउंड 33 या जो भी क्वेश्चंस किए थे, 3-4 तो मेरे गलत निकल गए थे, रीज़निंग वाले या वो वाले।
इंग्लिश का मैं कॉन्फिडेंट था, तो मेरे को हम्म ये था कि अगर मेरा होगा भी तो जस्ट होगा, नहीं भी होगा तो ऑन द एज था, आई हम्म वाज लिटरली ऑन द एज। हम्म एंड जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको शायद इस बात से मोटिवेशन भी मिले कि मैं 9th तक आई वाज वेरी अनसर्टेन दैट मुझे अपीयर भी होना है कि नहीं, बिकॉज आई हम्म फेल्ट आई वाज वेरी अंडर प्रिपेयर्ड, हम्म बिकॉज आई वाज ओनली गिविंग माय heart to the CBI exam, and हम्म along with that I found a friend who motivated me. It was Prashant. He's also preparing. So he told me कि यार फॉर्म भरा है तो जाके दे तो आओ। करेक्ट When I appeared, I had around 40 days from there. हम्म उसमें भी 20 दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि मैं एक और जगह लिटिगेशन करने चला गया। फिर जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो मैंने देखा लिस्ट में नाम था, मेरे 30.25 थे पेपर वन में। उसके बाद मैंने सोचा कि अब ये 20 दिन है, इसके बाद वैसे भी मेरी शायद 1 साल बाद जब अगले साल वैकेंसी आए तो आई माइट नॉट इवन बी एलिजिबल। हम्म तो मैंने सब जॉब वॉब छोड़ दी और तो 20 डेज बस मैंने पढ़ा हम्म मेंस। बट मैं ये बताना चाहूंगा, अलोंग विद दैट केवियट देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं मैंने 20 दिन पढ़ा था, 4 साल से मैं प्रायर ऑलरेडी नॉलेज पढ़ चुका था। अलोंग विद सिक्योरिटीज लॉ मैंने नवंबर दिसंबर से थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिलता था काम से या आप जैसे भी, अपना बेस बना रहे थे केस मेरा पूरा सेकंड बना फेज हुआ के था। लिए बस भी, बस बस रिवीजन और ये क्विक शांत। लर्निंग वाला जो पार्ट होता है। फिर उस 20 दिन मैं दिल्ली में ही था, तो फिर 20 दिन मैंने मतलब यही मेरा शेड्यूल होता था कि सुबह उठ जाओ और जब से आँख खुले और जब तक आँख ना बंद हो कुछ ना कुछ बस पढ़ते रहो। पढ़ते कभी रहो। यूट्यूब वीडियो देखा, कभी जेमिनाई का एआई असिस्टेंट से बात करता रहा, कुछ करता रहा, मतलब एक्टिवली एक ये रहा कि दिमाग में कि इसके वो है। उसके अलोंग विद दैट जितने लोग थे सबने बहुत हेल्प की। हम्म तो मेरा तो मेंस का बहुत अलग था बिकॉज़ आई हैड इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम प्रायर इन एंड इससे द आई थिंक सबको ये सीखना चाहिए कि कोई भी लर्निंग, चाहे आपकी जुडिशरी की लर्निंग हो, आपकी लिटिगेशन की लर्निंग हो, आपने लॉ क्लर्क एग्जाम भी निकाली, एट द एंड ऑफ द डे आप 20 डेज में वो एग्जाम क्रैक इसलिए कर पाए क्योंकि आपकी प्रायर लर्निंग बहुत स्ट्रांग थी। सालों की होती मेहनत। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अब जुडिशरी से इस एरिया में स्विच कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने सेट किया है कि कैसे उनकी प्रेपरेशन वर्थलेस नहीं है, वो उनके लिए बेस बनेगी फॉर एनी ऑफ द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें वो अपियर करने वाले हैं। राइट, I with that. ग्रेट। Then let's come to the last stage of your selection process, that is the interview. So how did Yeah. you prepare for that, and what was the things you kept in your mind for while going for the interview? Since I had already resigned, मैं लखनऊ उस समय भी आ गया था। मेरा लखनऊ दिल्ली टू एंड फ्रो चलता रहता था कि अगर यहाँ कुछ केस आ गया, कुछ काम आ गया, बिकॉज़ आई वाज़ आल्सो एसोसिएटेड विद अ फ्यू ऑफिसेज़ इन लखनऊ आल्सो। तो मैंने ये तो रियलाइज़ कर लिया था कि पर्सनैलिटी 1 महीने में ना आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ना बहुत ज़्यादा आपको मतलब कुछ ऐसा खराब हो सकता है। जो आपकी पर्सनैलिटी आपकी इतने सालों में शेप हुई है, वो बस आपको इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अपने थोड़े कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना होता है। और मैंने जो शायद आपके साथ भी मॉक दिया था, आपका भी बहुत पॉज़िटिव फीडबैक था और आपका भी यही कहना था कि नॉलेज पार्ट में कोई वो नहीं है। आपने 1-2 सजेशंस जो दी थी, वो भी बहुत हेल्पफुल थी। जैसे आपने मुझे बताया था, आई रिमेंबर कि एट टाइम्स यू स्ट्रेच योर आंसर्स टू लॉन्ग। आप इतना डिटेल में आंसर देते हो कि यू सेट काइंड ऑफ योर ओन, इट कैन बेसिकली बिकम अ हिंड्रेंस फॉर योर ओन केस कि आप इतना डिटेल में आंसर दोगे तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे। तो फिर मैंने 1-2 और लोग से कंसल्ट किया, तो सबका जैसा आपका फीडबैक था वही था कि आप क्रिस्प आंसर्स दो। सो दैट रियली हेल्प्ड। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड अलोंग विद दैट इंटरव्यू के लिए तो मैंने कुछ नहीं, जैसे आपके साथ मॉक किए, अलोंग विद दैट कुछ और 1-2 मॉक्स किए ऐसे ही। उसके लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया। और अलोंग विद दैट उसके बाद मैं तो सिर्फ एआई से पढ़ता था। सिर्फ जेमिनी के एआई असिस्टेंट पे मैं सारा अपना डेटा फीड कर चुका था, जितने मेरे पीडीएफ सालों के थे। और मैं उसको यही प्रॉम्प्ट देता था कि आप एक सेबी के रिक्रूटर हो, आपको इंटरव्यू लेना है, मेरी ये प्रोफाइल है। मैंने अपनी सीवी, सब काम, सब कुछ डाल दिया था। जेमिनी का मेरे पास प्रो वर्जन था, तो मैं सिर्फ उससे बात करता था, घंटों बात कर लेता था कभी। और मतलब बस मेरा मेन सोर्स वही था। इस पूरे दौरान किसी भी फेज में ना मैंने पेन उठाया ना पेपर, सिर्फ मैंने लैपटॉप पे। और कभी-कभी चूँकि मेरा सारा सिंक्ड था आईक्लाउड पे डेटा, तो अगर लैपटॉप होता था तो मैं लैपटॉप से पढ़ लेता था, आईपैड, फ़ोन, जो मतलब डिवाइस मेरे हाथ में रहा। क्योंकि मेरे पास वो लग्ज़री नहीं थी कि फिर पूरा कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि कभी कुछ A काम है, कभी classic कुछ। example how we can integrate AI into our preparation journey. दैट मतलब हैज़ बीन हेल्पफुल, वेरी या। गुड, राइट, अब एब्सोल्युटली वंडरफुल, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी के टाइम पे इसी पे स्ट्रगल करते हैं कि पहले हम बैठ के नोट्स बना लेते हैं पूरा पूरा, उसमें पेपर आ जाता है, रिवीजन चला जाता है, लर्निंग पार्ट पूरा स्विच हो जाता है। तो आई थिंक कि दिस इज हाई टाइम व्हेन एवरी एस्पिरेंट जो किसी भी एग्जाम में अपेयर कर रहा है उसे कैसे एआई को इंटीग्रेट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। दिस सेव्स योर टाइम, योर एनर्जी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कभी भी कहीं पर भी कुछ भी पढ़ सकते हो।
मतलब आपको कांस्टेंट नहीं है कि मेरे घर पे किताब रखिए तभी पढ़ूंगी, मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ, मैं अपने कॉलेज से घर जा रही हूँ, मैं अपनी जॉब से घर जा रही हूँ, तो मैं भी पढ़ाई कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ एआई इंटीग्रेशन। ग्रेट। ट्रू। और सो मेरा इंटरव्यू भी इट वाज आई गेस फ्रॉम व्हाटएवर आई लिटिल इंटरेक्शंस आई हैड विद अदर कैंडिडेट्स, मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट चला था। आई एंटर्ड द रूम एट 3:57, आई हैड रिपोर्टेड एट 12 पीएम ऑन 27th ऑफ मई। आई उसके बाद उन्होंने फिर मेरा चूंकि आ नहीं रहा था 2 बजे तक, मैं भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ लंच कर लो। और बहुत ही अच्छा, मतलब वो भी एक एडेड इंसेंटिव लगा लंच, इतना मतलब कि वर्क कल्चर, और क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसे देख रहे हो बाकी एम्प्लॉयज को, हाँ, अरे मोटिवेशन तो मिल जाता है। हाँ कि हमें भी शायद मे बी वील आल्सो गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड मतलब कोइंसिडेंटली आप देखिए मेरा 3:57 पे इंटरव्यू आया। आई वाज द सेकंड कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड पोस्ट लंच। देयर वर अराउंड 21 स्टूडेंट्स हु वर टू बी हम्म। इंटरव्यूड दैट पर्टिकुलर डे एंड आई वाज एट नंबर 16 एंड दे हैड ऑलरेडी इंटरव्यूड अराउंड 13 पीपल। सो पोस्ट लंच मेरा दूसरा या तीसरा आया, और मैं सारे तरह के, मतलब मैंने 3-4 इंट्रोडक्शन तैयार किए थे कि डिपेंडिंग हम्म। वो क्या पूछते हैं। तो उन्होंने, हाँ, फर्स्टली मैं भूल गया बताना, मेरा इंटरव्यू 42 मिनट चला। मैं 3:57 पे गया था ना, आई केम आउट एट 4:39, और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। जो नेक्स्ट कैंडिडेट था उससे मेरी जस्ट पहले बात हो गई थी बिफोर एंटरिंग, बिकॉज बोथ ऑफ अस वर स्लाइटली नर्वस, हम्म। सो वी हैड एन इंटरेक्शन। सो व्हेन आई केम आउट ही लाफ्ड, ही shook my hand and he was like, भाई मेरा भी इंटरव्यू तू दे आया क्या? So I was like, why do you say that? So he said, बाकी लोग का तो 20-25 मिनट चला था, तुमने ऐसा क्या बोला 42 मिनट्स? That is when I realized कि it took me that long. I didn't even realize it. हम्म। Or the first question the chairperson asked me was, Pratyush, did you have lunch? हम्म। So I was like, yes ma'am, I had lunch. The lunch was very good. और फिर मेरी लंच पे 2 से 3 मिनट उन्होंने बात की। तो मैंने कहा यस मैम आई हैड लंच, तो उन्होंने कहा वाज इट गुड? मैंने कहा यस इट वाज वेरी गुड। तो कहती हैं व्हाट इफ इट इज नॉट गुड एवरी डे, यू विल प्रोबेबली नॉट लाइक सेबी देन। सो मैंने कहा मैम द मेयर फैक्ट दैट आई गॉट टू ईट लंच ऑन टाइम इटसेल्फ इज अ लग्जरी, बिकॉज इन लिटिगेशन वी डोंट इवन नो वेदर वील हैव द टाइम टू ईट अ लंच और नॉट। तो उससे मेरा मतलब बहुत एक एक आइस पॉजिटिव ब्रेक हो गई और उससे ब्रेक हो कॉन्फिडेंस गया, बिल्ड हो गया। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, और सब लोग ने स्माइल किया उस चीज पे। हम्म। फिर 15-17 मिनट इट वाज जस्ट अबाउट मी, कि तुमने इतना कुछ किया है, हाउ डिड यू, मतलब अब क्यों करना है तुमको। तो फिर मैंने अपने रीजंस दिए, बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एंड हैविंग अ हम्म। लिमिटेड सोशल कैपिटल, आई फेल्ट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और फिर मैंने एमएस धोनी को कोट किया कि I heard in one of the post-match presentations where MS Dhoni said that one should control the controllables and not worry about the uncontrollables. And in litigation, I felt there were a lot of uncontrollables which were not in my hand. So फिर मैंने थोड़ी सेबी का तारीफ की ऑब्वियसली, हम्म। बहुत मेरिट प्रमोट करते हैं ये वो। तो मैम फिर हंसी, चेयरपर्सन जो थी, उन्होंने कहा मे बी यहाँ भी वही हो। तो मैंने कहा मैम द फैक्ट दैट आई एम गेटिंग टू सिट बिफोर यू एंड अपीयर इन दिस इंटरव्यू, आई फील दैट इट इज़ अ वेरी फेयर प्रोसेस इन इटसेल्फ। तो वैसे शुरू हुआ एंड देन टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत आए, बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हम्म। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। काफ़ी उन्होंने मुझे जजमेंट्स पूछी, मतलब मुझे लगता है कि कम से कम उन्होंने 20 से 30 क्वेश्चन अगर पूछे होंगे, तो देयर वर 3 क्वेश्चंस हम्म। जिनका मुझे बहुत अच्छे से आंसर नहीं आता था। हम्म। तो मैंने वो थोड़ा टैकल किया। मैंने हम्म। किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉरी नहीं बोला। मैंने जहाँ मुझे नहीं भी समझ आया, आई सेड कि आई वुड लाइक टू टेक दिस एन एजुकेटेड गेस इफ यू मे अलाउ। हम्म। सब लोग बहुत स्वीट थे, कॉर्डियल थे, बहुत सपोर्टिव। तो आई मतलब थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एनजाइटी कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग इंटरव्यूज, क्योंकि जहां आपने आपकी एनजाइटी कंट्रोल कर ली वहां आपने आधी जंग वैसे ही जीत ली। दिस इज जी, व्हाट जी। आई फील व्हेन इंटरव्यू कम्स इन। और राइट। सो मेरा एक इंटरव्यू में भी किसी ने इनसाइट दिया था कि आपका नॉलेज पार्ट तो बहुत इंप्रेसिव लगा हमें, बट आपका सबसे डीमेरिट हमें जो लगा वो ये कि आप स्माइल नहीं करते हो। तो मुझे ये रियलाइज हुआ, मैं प्रोफेशनल लगने के चक्कर में एकदम पोकर फेस रखता था सारे हम्म। मॉक्स। तो लोगों ने कहा नहीं, ह्यूमन एलिमेंट आप कभी नहीं जाने दे सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। राइट। नॉलेज आपकी टेस्ट हो चुकी है मेंस में, उनको पता है कि 20-30 हजार बच्चों में से अगर आप 60 लोग चुने गए हो, तो कुछ आपने पढ़ा है, एटलीस्ट यू हैव बेसिक नॉलेज। और मेरा इंटरव्यू कभी वो नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट जज को इंटरव्यू देके क्लियर कर चुके हो, तो एक वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है। बिल्कुल। सो ग्रेट प्रत्युष, आई थिंक दिस इंटरव्यू विल हेल्प अ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हियर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एलईएसी, एंड डेफिनेटली यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू एवरीबडी कि भैया जाके एग्जाम तो दो, प्रेपरेशन करना स्टार्ट करो, रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाता है लाइफ में, भले ही देर से मिले। ट्रू। राइट। सो माई लास्ट क्वेश्चन टू यू प्रत्युष, हाउ डिड एलईएसी हेल्प यू इन दिस जर्नी ऑफ योर्स? मैम एज आई ऑलरेडी मेंशन, जो इंटरेक्शन था उससे, मतलब मैं तो कहता हूँ कि आप जितने लोग से, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का एक अलग आपको लेके एक सजेशन रहेगा। तो मैं तो कहता हूँ आप जितने लोगों से आप मतलब मॉक दे सको, या जितने इंस्टीट्यूट्स से बात कर सको वो करो।
पर आप सबका एडवाइस लो और एक्चुअली फिर उस पे रिफ्लेक्ट करो कि क्या वो एक ऐसी चीज है कि आप उस पे उतने लिमिटेड टाइम में काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर कोई मुझे बोल दे कि अब आप एक काम करो, आपका पीआईटी वीक है, आप पीआईटी पढ़ने बैठ जाओ या एसएएसटी पढ़ने बैठ जाओ, तो आप नहीं पढ़ सकते हो, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं उतने कम टाइम में पढ़ना। तो आपने जो सजेशंस दिए वो बहुत ही रीजनेबल थे और लॉजिकल थे कि अपने आंसर शॉर्ट दो, स्माइल करो, तो वो एक्चुअली हेल्प उसमें जेन्युइनली। अब मेरे इंटरव्यू के मार्क्स तो अभी नहीं आए, ऑल्दो आई एम होपफुल कि अच्छे ही होंगे, तभी शायद हुआ भी, और बहुत ही लंबा इंटरव्यू चला था। और आपने मतलब थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया तो उससे भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। बस मेरा लास्ट में यही है, सबको जो भी किसी भी एग्जाम के लिए अपियर कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फील्ड दे आर फ्रॉम, बाय चांस अगर वो इस इंटरव्यू को यहाँ तक देखें तो मे बी दे फाउंड इट इंटरेस्टिंग। बस मेरा यही है कि बस अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, बिकॉज आई वॉज वेरी एंशियस, आई वॉज डिप्रेस्ड, आई टुक अ लॉट ऑफ हेल्प, my family was very supportive, that is the only reason I am here, otherwise I don't even know where I would have been. So मेरा प्रायोरिटी बस ये मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, बाकी कुछ ना कुछ हो जाता है लाइफ में, लिटिगेशन में हो जाएगा या हो सकता है कोई भी एग्जाम। और मुझसे अगर कोई 1 साल पहले पूछता सही, तो मुझे पता भी नहीं था कि करेक्ट। पूरा प्रोसेस क्या है, एंड आज मेरा हो गया, तो मतलब आई वो है, थिंक यू दिस नेवर। इज डेस्टिनी। आई थिंक दिस या इज डेस्टिनी श्योर फॉर श्योर श्योर। दैट। Thank you so much, Pratyush. And I think this interview will motivate a lot of students who are struggling right now, because on this platform we have students from CLAT, preparing for CLAT, या UGC, GLOE, everything. So I think ये message तो सबके लिए common है कि डरो मत, करने से मत डरो, मेहनत करो, यहाँ नहीं तो कहीं और रिजल्ट मिल ही कहीं जाता और। है लाइफ में। राइट, अब ओके। वो मैं बोल सकता हूँ, 1 हफ्ते पहले शायद आप मुझसे पूछती तो आई वुड probably given a different answer, but maybe now I can agree with you. Yeah. Once again, thank you so much, Pratyush. We are very happy that you were, related with LEAC, and we were happy to guide you to become a part of your journey and your success. Once again, congratulations, and thank you so much for spending time for this interview. Thank you so Thank you, much. Pratyush.